Hello and welcome to Topper Brains. Today we will discuss the question answers of chapter 8 The Eyes Have It by Ruskin Bond. It is a very beautiful story. If you had not listened the explanation, you will get it down below the description. Please visit the description. I am providing the link in description of the full chapter explanation. Now we will start the question answer of The Eyes Have It. First question is, what instructions did the girl's parents give her and why? The girl's parents instructed her as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. Second question, how did the narrator learn that his companion wore slippers? The narrator learned that the girl who presently got into the compartment wore slippers from the sound of its back slapping against her heels. Question number 3. Yes, October is the best time. How does the narrator describe Mussoorie in the month of October? The narrator said in the month of October, Mussoorie is quiet and the roads are mainly deserted because most of the tourists have gone. The hills are covered with wild dahlias. The sun is warm and lovely, and at night you can drink coffee in front of a log fire. Fourth question is, how did the narrator feel as the train approached the Saharanpur station? The narrator was sad that the girl was getting down at the station. In fact, he had been prepared to sit there for almost any length of time for her company, as he liked her company, as we had learned from the chapter. The journey with the girl was one of the most pleasant times in his life. Fifth question is, give instances to show that the narrator was a sharp observer. Though the narrator was blind, he was a sharp observer. He easily guessed that she was wearing slippers from the sound of the slapping of it against her heels. His description of Mussoorie is detailed and vivid. A3. This is a line taken from the story. Then I made a mistake. Then I made a mistake. Who made a mistake? Narrator made a mistake. What was the mistake? The narrator wanted to hide his blindness from the girl, so he made pretense to see. But he threw a question unconsciously. What is it like outside? To him, it was a great mistake that would disclose his blindness to her. नैरेटर को लगता था कि उसने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया. कैसे? नैरेटर जो है अपना ब्लाइंडनेस को, अपने अंधेपन को छुपाना चाहता था गर्ल से, लेकिन प्रिटेंड तो वो वही कर रहा था छुपाने का, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मिस्टेकनली उसके मुंह से ये क्वेश्चन निकल गया, व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, ये बाहर क्या है. तो उसको लगा कि शायद ये गर्ल को पता चल जाएगा कि मैं अंधा हूँ, लेकिन वो बच गया. वो लड़की को नहीं पता चला. वो लड़की उसके ऊपर क्वेश्चन कर दी, उसके ऊपर उसको जवाब दी कि आप खुद ही देख लो खिड़की से कि बाहर क्या है. तो वो रिलैक्स हुआ फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नैरेटर कॉल इट अ मिस्टेक. नैरेटर ने इसको मिस्टेक क्यों कहा? क्योंकि वही बात है, क्योंकि वो अपना ब्लाइंडनेस को छुपाना चाहता था, और वो जो क्वेश्चन अचानक से निकल गया नैरेटर के मुंह से, उससे क्या होता कि वो उसको लगा कि उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसको लगा कि ये तो मिस्टेक हो गया मेरे से. द नैरेटर वॉन्टेड टू हाइड हीज ब्लाइंडनेस फ्रॉम द गर्ल, दैट्स वाई ही कॉल्ड इट अ मिस्टेक. अगर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए. डिस्क्रिप्शन में आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का लिंक मिलेगा. आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा स्टोरी है.
उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, और वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे ही एक छोटा सा एक मोटिवेशन मुझे मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा काम करता रहता हूँ। नेक्स्ट है लाइन जो है, शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। ये बात किसने कहा था, क्या आपको याद है चैप्टर से, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। ये बात नैरेटर ने कहा था। एक न्यू को पैसेंजर आया, जब लड़की उतरने लगी सहारनपुर में, तो एक को पैसेंजर आया, उसको ये बात उसने कहा कि वो लड़की इंटरेस्टिंग लगी, उसका बाल जो है वो लंबा था या छोटा था। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, होम डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन टू। तो ये स्पीकर किससे ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये को पैसेंजर से पूछता है, द न्यू पैसेंजर। द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन टू द को पैसेंजर। वाई डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन स्पीकर ने क्यों पूछा। द नरेटर वॉज ब्लाइंड एंड ही हैड बीन हाइडिंग दिस फैक्ट फ्रॉम द गर्ल। वो ब्लाइंड था और वो गर्ल से वो फैक्ट छुपा रहा था। सो व्हेन द गर्ल got down at Saharanpur, he wondered how her hair was like। तो जब वो लड़की उतर गई सहारनपुर में, तो उसको फील हुआ, उसको लगा कि कैसा उसका, वो सोचने लगा कि कैसा उसका बाल होगा, क्योंकि उसको ट्रेन में जब वो उतर रही थी तो उसको उसका बहुत फ्रैग्रेंस मिला था, खुशबू मिला था बाल से। तो उस टाइम से उसको इंटरेस्ट था ये जानने का कि उसका बाल लंबा था या छोटा था। नेक्स्ट है, वॉट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ। हाउ इज़ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो इस स्टोरी का कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। द नरेटर आस्क्ड द न्यू पैसेंजर इफ द गर्ल्स हेयर वॉज लॉन्ग और शॉर्ट। द न्यू को पैसेंजर रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट टेल अबाउट द गर्ल्स हेयर बिकॉज ही नोटिस्ड हर आईज नॉट हर हेयर। तो को पैसेंजर ने कहा कि वो इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उसके बाल को तो नहीं देखा लंबा है या छोटा है, लेकिन हर आईज वेर ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, बट नॉट ऑफ एनी यूज, लेकिन कोई काम का नहीं था। द गर्ल वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो वो को पैसेंजर ने बताया कि गर्ल तो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। तो ये सुन करके ऑथर को, नरेटर को बहुत झटका लगा, बहुत बुरा लगा। It was the most important part of the story as the suspense disclosed here, and the great joy of the narrator was shattered into pieces hearing this hard truth from the newcomer। और जो ऑथर था उसका जो खुशी था वो बिखर गया, चकनाचूर हो गया, और ये सस्पेंस जो था इस स्टोरी का यहाँ पे वो खुल गया। देन ए थिंक एंड आंसर, इसका क्वेश्चन है, वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस, द स्टेटमेंट हैज सम ट्रूथ टू इट बिकॉज पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू रिलाई ऑन देयर अदर सेंसेस। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिनका साइट्स नहीं होता है, आंखें ख़राब होती है, वो अपने अदर सेंसेस पे डिपेंड होता है, कि उसको छू करके पता करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, वो सेंसेस पे वो डिपेंड होता है। दे नोटिस मच मोर देन पीपल विथ गुड आई साइट, और वो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर पाते हैं। हम जैसे, हमारे जैसे आंखें अच्छी हैं, हम लोग देख पाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कुछ इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग तो देख ही सकते हैं सब कुछ। लेकिन जिनका आंखें ख़राब होते हैं, जिनको ब्लाइंडनेस होता है, उनको पता है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें बहुत संभल कर चलना है, चीज़ों को ढूंढना है, तो वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड, और वो लोग ज़्यादा फोकस्ड रहता है। इसलिए ये ट्रूथ जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये ट्रूथ है कि पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू रिलाई ऑन देयर ओन अदर सेंसेस, और वो लोग जो है वो लोग अच्छे से देख पाते हैं। दे नोटिस मच मोर देन पीपल विद गुड आई साइट, क्योंकि वो लोग फोकस्ड होते हैं। तो ये चैप्टर का एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड, और प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं लॉन्ग में न्यू इमेजेस नेक्स्ट का सारा चैप्टर सॉल्व किया हुआ है, सारा चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशंस भी है। आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि सबको भरपूर फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।